ضلع ننکانہ تحصیل شاہکوٹ کے 2 گاؤں بہوڑو چک 18 رب اور اسلام نگر چک 81 رب سے تعلق رکھنے والے بدقسمت خاندان کے 9 افراد سعودی عرب میں روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ روڈ ایکسیڈنٹ کا واقعہ مکہ سے ریاض واپسی پر قصیم بریدہ کے مقام پر پیش آیا۔ گاڑی میں ٹوٹل 12 افراد موجود تھے، جن میں سے 9 کی شہادت ہو گئی۔ 3 زخمیوں میں اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے محمد طیب گورایا گاڑی ڈرائیور کر رہے تھے، جو شدید زخمی ہو گئے اور 2 بچوں کو معمولی زخم آئے۔ شہید ہونے والوں میں ذوالفقار علی سابق پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول، شہباز علی ولد محمد یونس، ام امارہ زوجہ شہباز علی، عماریہ بیوی زوجہ محمد طیب گورایا، خرم فاطمہ ولد محمد طیب، محمد داؤد ولد طیب، ابو ذر ولد طیب، تحریم فاطمہ ولد محمد شہباز، حریم فاطمہ محمد شہباز۔ زخمی محمد طیب، عبدالہادی محمد شہباز، عبدالوہاب ولد محمد شہباز۔ راولپنڈی سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتاتے چلیں، کلر سعیدہ کے علاقہ ممیام میں زمین کے تنازع پر جھگڑا، فائرنگ، گولی لگنے سے بیچ بچاؤ کراتا ہوا شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ مقتول کی شناخت 40 سالہ یاسر محمود زخمی کی غضنفر کے نام سے کر لی گئی ہے۔ لاش اور زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ بلوچستان ضلع جھلمکسی کی لاکھوں ایکڑ اراضی سے کسانوں کا لوٹ مار کر کے میانجی خانہ کے نام پر لیویز کو استعمال کر کے ہزاروں ٹن گندم ڈپٹی کمشنر جھلمکسی کی سربراہی میں سیف آباد کے مقام سے افغانستان منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ کیا ایک ڈپٹی کمشنر گورنمنٹ سے اسٹیٹ سے سب سے زیادہ پاورفل ہے، یا گورنمنٹ کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا چیف سیکرٹری بلوچستان کو اس پاکستان کی تاریخ کی بڑی سمگلنگ سے اپنا حصہ مل رہا ہے جو خاموش ہیں؟ آئیے دیکھیں اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ ڈاکٹر ثنا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام باچا خان چوک پر 1000 کے قریب غریب اور مزدور کش طبقے کے لیے فاؤنڈیشن کی جانب سے افطاری دی گئی۔ فاؤنڈیشن کا دسترخوان ہر سال رمضان میں کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں لگائے جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد عام دنوں میں بھی کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں رات اور دن کے لیے دسترخوان کا اہتمام کیا جائے، تاکہ ہماری دسترخوان پر غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی بآسانی میسر ہو سکے۔ ثنا فاؤنڈیشن کی کوشش ہوگی کہ کوئٹہ میں آنے والا سال فاؤنڈیشن کوئٹہ کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے دیگر اضلاع میں بھی دسترخوان لگائے جائیں گے۔ میں اپنی ٹیم اور فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرنے والے افراد کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے تعاون کر کے دسترخوان میں ہماری مدد کی۔ پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آج اپنے متعلقہ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس اپنا ٹکٹ جمع کروائیں گے۔ فہرست چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر جاری کی گئی ہے۔ امیدواروں کے انٹرویو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے خود کیے ہیں۔ راولپنڈی فوڈ سیفٹی ٹیم کا مال روڈ مری پر موجود ہوٹلز اور فاسٹ فوڈ پوائنٹس کا معائنہ۔ قوانین کی خلاف ورزیوں پر ایک معروف ہوٹل کو بھاری جرمانہ کیا گیا۔ ہوٹل کی پروڈکشن ایریا میں حفظانِ صحت کے انتہائی ناقص انتظامات پائے گئے۔ صحت اور صفائی کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے 7 فوڈ پوائنٹس کو وارننگ نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ عید الفطر پر ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاح مریخ کا رخ کرتے ہیں۔ چیکنگ مہم کا مقصد شہریوں تک معیاری خوراک کی ترسیل یقینی بنانا ہے۔ ایس ایس پی آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی نے جناح ہال مری میں عید کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا۔ ایس پی صدر محمد نبیل کھوکر، اسسٹنٹ کمشنر مری، ڈی ایس پی ٹریفک مری انچارج 1122، محکمہ جنگلات، ڈی ایچ کیو مری، ہائی وے، موٹر وے آئسکو اور دیگر اداروں کے آفیسرز نے شرکت کی۔ تمام اداروں کے نمائندگان نے ایس ایس پی آپریشنز کو انتظامات اور اقدامات کے حوالے سے بریف کیا۔ ایس ایس پی آپریشنز نے عید کے دوران فول پروف سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کے حوالے سے ضروری ہدایات دیں۔ ایس ایس پی آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کا کہنا تھا، سیاحوں کو کسی قسم کی مشکلات پیش نہیں آنی چاہیے۔ ٹورزم پولیس، ٹورزم اسکواڈ اور باقی تمام ادارے باہمی ربط رکھیں تاکہ سیاحوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ایس ڈی پی او مری ٹورزم پولیس کے آفیسرز اور جوانوں کو عید کے حوالے سے خصوصی بریفنگ دی۔ سیاحوں کے محفوظ اور خوشگوار سفر کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
सरगोदा से खबर शामिल करें। आपको बताते चलें, ज़ोहेब मुश्ताक जोनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स ने चुंगी नंबर 9 पर एक और सुपर यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर रीजनल मैनेजर अली अमीर भट्टी भी उनके हमरा मौजूद थे। तफसीलात शामिल करें। आपको बताते चलें, सईद ओन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ोहेब मुश्ताक का कहना था कि चुंगी नंबर 9 पर यूटिलिटी स्टोर्स का क़याम नवाब कॉलोनी, बशीर कॉलोनी और मकामी आबादियों का दरीना मुतालबा था। आज इसका आगाज किया है। हुकूमत की तरफ से स्टोर्स पर 9 आइटम्स ऐसे हैं जिन पर रमज़ान में खुसूसी सब्सिडी दी गई, जिनमें ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी तमाम अशिया शामिल हैं और यूटिलिटी स्टोर्स पर सामान वाफिर मिकदार में मौजूद है। इस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अहल अफराद को भी यहाँ से सब्सिडी देने का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जो बैरून मुल्क से हमारे भाई सरमाया पाकिस्तान भेजते हैं, उनके अजीज़ व क़रीब के लिए भी सोहनी धरती के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें वो अपने जमा पॉइंट्स लेकर आते हैं और बगैर किसी मुआवजा के अपने पॉइंट्स के मुतबादिल खरीदारी का सामान लेकर जाते हैं। इस मौके पर जोनल चेयरमैन अली अमीर भट्टी ने बताया कि सरगोदा में 27 यूटिलिटी स्टोर्स की शक्ल में अवामी खदमत के मरकज़ कायम है। इस स्टोर से चुंगी नंबर 9 के गिर्द 20 से 25 हज़ार की आबादी मुस्तफ़ीद होगी। हमारे स्टोर अवामी खदमत के लिए हर वक्त कोशा हैं। कार कमाल वेलफेयर फाउंडेशन चीचावतनी कार कमाल वेलफेयर फाउंडेशन चीचावतनी ने ईद प्रोजेक्ट के तहत मोहम्मदी आगोश यतीम खाना के तहत तमाम बच्चों में नए कपड़े तकसीम किए और बच्चों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया। इस मौके पर कार कमाल चीचावतनी की टीम के सदर हानजाला नवीद का कहना था कि उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से भी गुफ्तगू की कि कार कमाल पाकिस्तान के बहुत से शहरों में खिदमत हल का काम कर रही है। सदर कार कमाल वेलफेयर फाउंडेशन चीचावतनी हानजाला नवीद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कार कमाल फाउंडेशन गरीब, यतीमों और मुस्तहिक अफराद का इदारा है। कार कमाल फाउंडेशन ने पूरे पाकिस्तान में हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना शिआर बनाकर गरीबों की मदद की है। ये तुलबा पर मबनी इदारा है। मुखय्यर हजरात इरकार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें ताकि गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। दुखी इंसानियत की मदद करके ही हम अल्लाह ताला खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। रिपोर्ट कर रही हैं साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ यूनुस शहबाजी। सरगोदा से आपको खबर दें, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक माह के दौरान 5 करोड़ 87 लाख का माल मसरूका बरामद। सईद ओन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक 62 लाख नकदी, 6 कारें, एक ट्रैक्टर और हुंडाई डाला बरामद। करोड़ों रुपए की मालियत की चोरी शुदा 157 मोटरसाइकिल, 4 रिक्शे, 72 मवेशी भी बरामद कर लिए। संगीन जराइम में रूपोश 404 इश्तिहारी भी गिरफ्तार। 31 क्लैशनकोफ, 77 राइफल्स, 81 बंदूकें, 432 पिस्टल्स भी बरामद। संगीन नौयत की वारदातों में मुलविस 14 गैंग के 52 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। डीपीओ फैसल कामरान ने करोड़ों मालियत का बरामद माल मसरूका मालिकान के हवाले कर दिया। माल हवालगी की तकरीब पुलिस लाइन सरगोदा में मुनक्किद हुई। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सीना सुपर पुलिस टीमों में नख्त इनामात भी तकसीम किए गए। डीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस जवानों की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ हौसला अफजाई की। डीपीओ सरगोदा फैसल कामरान का कहना है कि मुआशरती नासूरों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ वाहनी हाथों से निपटने का मिशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ हिजर जहूर गुराइया का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ हिजर जहूर ने इमरजेंसी के शोबा और पैथोलॉजिकल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का खुसूसी मुआयना किया। बाद वो MSTHQ डॉक्टर रियाज अहमद के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने इंतजामी उमूर और अवामी दिलचस्पी के हामिल कई इस्तफारात किए। बिलखुसूस ईद उल फितर की तातीलात के दौरान तमाम शोबाजात और अवाम के जर्नल मसाइल को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर रियाज अहमद ने कहा कि शोबा तिब में छुट्टियों का तसव्वुर महदूद है। उमूमी तौर पर सारे उमूर तयशुदा डॉक्टर्स की अस्पताल में मौजूदगी को यकीनी बनाया गया। आम आयाम की तरह तातीलात में हम अवाम की मुनासबत से खिदमात के लिए हमा तन हमा वक्त मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने एम्बुलेंस की तादाद और कारकर्दगी के मुतालिक भी इस्तफसार किया, जिस पर MS ने जवाब दिया कि सरकारी एम्बुलेंसेज की तादाद कम है, ताहम एम्बुलेंसेज 1122 और मुतबादिल सहूलियात मौजूद रहती हैं। हस्बे हालात मामूलात को मैनेज किया जा सकता है। टंडोवाला यार से रिपोर्ट कर रही हैं जावेद कायम खानी। महफिल शान रमजानो खत्मिल कुरान जामे मस्जिद नूर मुस्तफ़ा ताहिरिया जरदारी कॉलोनी टंडोवाला यार में इत्तकाफ वालों को और हिफाज कराम को खार और तहाइफ पेश किए गए। इस मौके पर मस्जिद के मोहतरम महबूब सजन साई के खलीफा मुफ्ती अब्दुल जब्बार मस्तूरी ताहिरी ने अपने बयान में एक अहम पैगाम दिया कि शैतान कैद हुए की वजह से रमजान मुबारक में मुसलमानों के अमाल में नुमाया तब्दीली आती है, यानी नमाजियों की कसरत, सहरी के वक्त बेदारी, रोजाना 2 वक्त खाना खाना, इत्तकाफ वगैरह और आकाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अमली सूरत महबूब सजन साई के दरबार अल्लाह आबाद शरीफ
कंडियारों में पाबंदी से हमेशा मौजूद है और सोहबत रमजान शरीफ की तरह जो सजन साहिब की सोहबत में आता है उसकी दोस्ती हमेशा के लिए शैतान से खत्म होकर रहमान के साथ पक्की हो जाती है। शहदादपुर ईद करीब आने के बावजूद बढ़ती हुई महंगाई के बाइस मेन शाही बाजार समेत शहर के दीगर कारोबारी मराकज खरीदारों से खाली। ताजिर बरादरी खरीदार न होने की वजह से शदीद परेशान है। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना दोहबर कर दिया। गरीब और निचले तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ईद की खरीदारी से महरूम हैं। मुल्क भर में ईद आने में एक रोज बाकी रह गया है, लेकिन शहदादपुर शहर के सैयदपाड़ा शाही बाजार में दीगर कारोबारी मकामात पर ताहाल कोई खरीदार नजर नहीं आ रहा। इस हवाले से शहदादपुर की शाही बाजार के व्यापारी ने नुमाइंदा BRN न्यूज राना नदीम असलम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें गरीब आवाम को रिलीफ देने के बजाय बार बार गरीबों को महंगाई के तोहफे दे रही हैं। उनका कहना था कि गुज़श्ता साल रमजानुल मुबारक में 100% कारोबार हुआ था, लेकिन इस साल PDM की हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का ऐसा बम गिरा दिया कि कोई खरीदार नहीं आया। उन्होंने वफाकी और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिलखुसूस आवाम को सब्सिडी देकर महंगाई का खात्मा किया जाए। शहदादपुर के इलाके इंतखाबी सियासत में आने का मकसद अवाम की खिदमत समेत अपने इलाके के मसाइल को हल करना है। टाउन कमेटी जेटना की तामीर और तरक्की के लिए जिद्दोजहद जारी रखूंगा। इस मर्तबा ताकत नहीं, सियासी शऊर से फैसला होगा। टाउन कमेटी जेटिया की तामीर और तरक्की के लिए दियानतदार, पढ़े लिखे नौजवान अहले क़यादत को वोट दें। अपने बच्चों को अच्छे मुस्तकबिल और वार्ड की तरक्की के लिए 7 मई को इंतखाबी निशानरानी पर ठप्पा लगाएं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने टाउन कमेटी जेटिया वार्ड नंबर 2 के आजाद उम्मीदवार खालिद ज़हूर बेग ने अपने इलेक्शन ऑफिस में BRN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत पर सिर्फ जागीरदारों और सरमायादारों का हक नहीं, पाकिस्तान के पढ़े लिखे अहले तबके और को भी मैदान में उतरना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि खिदमत हल को शार बनाकर मुआशरे की फलाह का काम अंजाम देना चाहता हूँ। नारोवाल शकरगढ़ रोड पर मोटरसाइकिल और डंपर के दरमियान तसादुम। नारोवाल डंपर और मोटरसाइकिल के दरमियान हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौका पर ही जान बहक हो गया। जख्मी होने वाले दूसरे नौजवान को रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बिलाल वल्द इमदाद उम्र 27 साल साकिन थला खुद जख्मी हो गया। हादसे में जान बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त बाबर के नाम से हुई। हादसे में जान बहक होने वाले नौजवान की लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। सरगोधा पटवारियों के डबल शाह ने अंत मचा दी। प्राइवेट मुंशी जिले हसनैन की मुबैना जालसाजी से मुतादिद अफराद अपनी करोड़ों मालियत की जायदादों से हाथ धो बैठे। 50 ट्रक में बैरून मुल्क गए शहरी को करोड़ों रुपए मालियत के घरों से महरूम कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जालसाजी और रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके मुबैना 4 कोठियां किसी और के नाम कर दी गई। महकमा रेवन्यू से खारिज शुदा ऑर्डर गायब करके रिकॉर्ड में रद्दोबदल भी कर दिया गया। रजिया सुल्ताना की जायदाद जुबानी बयान और जाली दस्तावेजात पर एयाज यूसुफ के नाम कर दी गई। गंदे धंधे में तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर शामिल मुतासिरा खातून ने एंटी करप्शन में दरखास्त दे दी। शहरियों की कीमती जायदादों का रिकॉर्ड प्राइवेट अफराद के गैर महफूज हाथों में होने पर शहरियों में गुस्से की लहर। डिप्टी कमिश्नर को मुतासरीन की जानिब से मुतादिद दरखास्तों के बावजूद करप्शन किंग शौकत पटवारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न हो सकी। मुतासरीन ने वजीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल कर रहे हैं पीर महल से, रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर इकबाल मलोका। दी एजुकेटर्स स्कूल कायदे आजम कैंपस पीर महल में पुरतकल्लुफ अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। शहरियों की कसीर तादाद ने अफ्तार पार्टी में शिरकत की। डायरेक्टर दी एजुकेटर्स मलिक अरशद जावेद ने माह मुकद्दस में नेकियां समेटते हुए इफ्तार में शिरकत करने वाले रोजेदार मेहमानों की खूब मेज़बानी की। अफ्तार से कबल हम्दो सनाह जिक्र अज़कार का सिलसिला भी जारी रहा। इस मौका पर तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शहर के कारोबारी शख्सियात, असातिज़ा कराम, मुख्तलिफ कॉलेज के प्रिंसिपल्स, वकला बरादरी, समाजी शख्सियात, फलाही शख्सियात, मीडिया नुमाइंदगान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डायरेक्टर दी एजुकेटर्स स्कूल कायदे आजम कैंपस मलिक अरशद जावेद ने कहा, माह सयाम बख्शिश और नेकियां कमाने का महीना है। इस माह मुकद्दस में तमाम रंजो गम गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। शुजाबाद से खबर शामिल करेंगे अजहर ताज की। शुजाबाद एसपी सदर मोहम्मद उजैर ने SDPO मुर्तजा सयाल के हमरा ईद उल फितर के हवाले से शुजाबाद शहर का दौरा
किया और दुकानदारों, रेहड़ीबानों और शहरियों से रुक कर गुफ्तगू की। पुलिस के रवैये और सिक्योरिटी के बारे में भी दरियाफ्त किया। पुराने सिटी को चौकी बनाने के बारे में भी ताजिरान से गुफ्तगू की। शहर को सेफ सिटी बनाने के लिए ईद उल फितर के बाद शहर के दाखिली खारजी चौकों पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मासूम बच्चों ने एसपी सदर मोहम्मद उजैर, एसडीपीओ मुर्तजा सयाल और सिक्योरिटी एहलकारों से हाथ मिलाकर पुलिस और अवाम दोस्ती का सबूत दिया। शुजाबाद का रुख कर रहे हैं, अजहर ताज की रिपोर्ट शामिल करेंगे। शुजाबाद डीएसपी मुर्तजा सयाल का मरकजी अंजुमन ताजिरान के वफ्द के हमरा ईद के रश के बायस अंदरूनी शहर के चारों बाजारों का सरप्राइज विजिट। सिक्योरिटी ऑफिसर शाहिद पाशा भी हमरा थे। शुजाबाद डीएसपी मुर्तजा सयाल ने मरकजी अंजुमन ताजिरान के सदर हाजी अख्तर कुरैशी, नायब सदर अहमद हसन कुरैशी, रेलवे गेट के सदर सरफराज कुरैशी के हमरा बाजारों में रश के बायस अंदरूनी शहर के चारों बाजारों का सरप्राइज विजिट किया, जिस पर मरकजी अंजुमन ताजिरान के चेयरमैन मलिक आमिर ने डीएसपी मुर्तजा सयाल से ईद की वजह से रश बढ़ने के बायस पुलिस एहलकारों के बाजार में ड्यूटी लगाने के बारे में आगाह किया, जिस पर डीएसपी मुर्तजा सयाल ने कहा कि इंशाअल्लाह कल से मैं बाजारों में पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगा दूंगा। इस मौका पर मरकजी अंजुमन ताजिरान के अहदेदारान और मेंबरान ने डीएसपी मुर्तजा सयाल और सिक्योरिटी ऑफिसर शाहिद पाशा का शुक्रिया अदा